Okay, we'll start next point, that is routing information protocol. We have already done the practical over this routing information protocol. Routing information protocol goes under the category of intra-domain, and under the intra-domain, that is vector routing. So let us see this we have already discussed about this one, that is routing protocols. So there are two different routing protocols, intra-domain and inter-domain. So here distance vector routing, we have already discussed this one, as well as also link state. Now under this distance vector routing protocol, this particular distance vector routing algorithm, we use now RIP, and we know that this is used for finding the shortest path, both distance vector and link state. But the strategy is different for this link, that is link state and distance vector. So here routing information protocol, a RIP protocol we use, and in a link state we use this OSPF. We have a little discussion, a little description over the OSPF and RIP, because most of the time the question always asked over link state only and distance vector only. Sometimes we use this the question of this RIP or OSPF. So so that we'll also discuss somewhat less amount of time over this RIP and OSPF, as well as the BGP, border gateway protocol. So that goes under the category of path vector. अब यहाँ पर डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट किससे यूज होता है? फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, लीस्ट कॉस्ट, और इसमें स्ट्रेटेजी जो होती है लिस्ट कॉस्ट फाइंड करने की, वो लिंक स्टेट में अलग होती है, डिस्टेंस वेक्टर में अलग होती है. डिस्टेंस वेक्टर में हमने देखा बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम यूज होता है, तो लिंक स्टेट में हमने देखा वहां पे डायस्ट्रा एल्गोरिथम यूज होता है. वैसे ही यहाँ पे पाथ वेक्टर इज नॉट अबाउट द shortest path finding. It is only for finding the path, not the short path or not the least cost path. तो ये पाथ वेक्टर ये कोई कॉस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द लिंक्स बिटवीन द डिफरेंट नोड्स. सो दैट इज अ पाथ वेक्टर. एंड बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, दैट मीन्स जो भी नोड्स है हम उसको स्पीकर नोड कहते हैं पाथ वेक्टर में, वही बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यूज होता है. बॉर्डर गेटवे मतलब वो बॉर्डर पे अस्थायी रूप से बॉर्डर पे ही उसको फिक्स किया जाता है. तो ये इसलिए बॉर्डर मतलब एएस का बॉर्डर, ऑटोनॉमस सिस्टम. हर एक नेटवर्क में एक ऑटोनॉमस सिस्टम होता है, उसके अंदर फिर गेटवे होता है, वहां पे नोड्स होते हैं, वहां पे राउटर्स होते हैं. तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं. तो ये यहाँ पर हम कहेंगे अलग अलग प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होगा. तो उसमें से एक प्रोटोकॉल है पहला, दैट इज RIP प्रोटोकॉल. So we have just a general discussion, that means a description on this RIP protocol. What is this RIP protocol? Routing information protocol. Routing information protocol क्या है? ये इंट्रा डोमेन राउटिंग. वेट मिनट, क्या बोलता है, क्या Okay, so here we know that this is a, that means this RIP routing information protocol is a intra domain routing protocol. जैसा यहाँ पे हमने इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये यूज्ड इनसाइड एन ऑटोनॉमस सिस्टम. ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर ही इसको यूज किया जाता है, इस RIP प्रोटोकॉल को.
So it is very simple protocol based on distance vector routing. जैसा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हमने देखा था, तो बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है वैसे ही यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होता है। रिप प्रोटोकॉल में सिर्फ अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो रिप प्रोटोकॉल में हमें एक छोटी सी कमांड देनी पड़ती है। वो कमांड यहाँ पे हम अभी या एक्चुअली वो कमांड यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो उसमें एक सिंपल एक कमांड होती है जो कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के रिलेटेड वहाँ पे होती है। सो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, इट इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग protocol. It is used to find the best route or path from end to end over network by using cost or hop count कहते हैं इसमें. That is metric cost. ये जो cost है between one node to another node, node A and node B, and there is another node suppose C. तो इसमें अगर हमें reach करना है C को तो कैसे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो बेस्ट पाथ कौन सा होगा, इसमें बेस्ट रूट और पाथ कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम देखते हैं यहाँ पे कि ये पाथ प्रॉपर है, ना कि ये पाथ, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है यहाँ पे 2 है और इसकी कॉस्ट यहाँ पे 3 है। तो ऑब्वियसली हम पाथ कौन सा यूज करेंगे, A to B, B to C। तो कॉस्ट यहाँ पे मैटर करता है, कॉस्ट यहाँ पे मैटर करता है, या तो हॉप काउंट। अब हॉप काउंट कैसे है, हम एक्चुअली राउटिंग में रिप में हम जनरली हॉप काउंट ही यूज करते हैं। हॉप काउंट किसका मतलब ये है कि अगर एक नोड है, ये नोड बी, नोड सी, नोड डी, अब यहाँ पे हॉप काउंट का मतलब वही है जो कॉस्ट का मतलब होता है कि मुझे अगर डी तक रीच करना है, सी तक रीच करना है, ए टू सी, ये क्या है यहाँ पे सोर्स, सी क्या है यहाँ पे डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर रीच करना है, सो एट दैट टाइम आई हैव टू कंसीडर द नंबर ऑफ हॉप्स। अब यहाँ पर ये पहला हॉप 1 हॉप और ये सेकेंड हॉप। यहां से अगर जाए हम, पहला हॉप, सेकेंड हॉप, ये हॉप मतलब एक we can say visit the particular node once and then B will visit to node C so that A can logically connect to C by using the 2 hops via A, B, C or A, D, C depend on the cost। कहाँ से ज्यादा कॉस्ट होती है उसको एलिमिनेट करके जहां से कॉस्ट कम है वहां पर वो पाथ चूज करता है। तो दैट इज REAP. It is used to find the best route or path from end to end over network by using this routing metric, metric means cost, या तो हॉप काउंट एल्गोरिथम, हॉप काउंट एल्गोरिथम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम यहाँ पे ले सकते हैं हम, दैट इज 15 फॉर REAP, इट इज 15। सो ये 15 तक लाइव रहेगा पैकेट और उसके बाद ये डिस्कार्ड हो जाएगा। इट इज यूज्ड फॉर अपडेटिंग द राउटिंग टेबल एवरी 30 सेकंड्स, मींस राउटिंग टेबल एवरी 30 सेकंड्स ये अपडेट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पाथ है, ये पाथ फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर विद इन अ AS, ये अगर चेंज होता है, कॉस्ट अगर चेंज होती है, तो यहाँ पे हमें हर एक का टेबल, राउटिंग टेबल भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए 30 सेकंड का इसका टाइम पीरियड है। आफ्टर एवरी 30 सेकंड दैट राउटिंग टेबल विल अपडेट। सो दिस REAP implements a distance vector routing directory with some considerations। ये डिस्टेंस वेक्टर डायरेक्टरी यहाँ पर यूज होगी by considering some considerations, by using some considerations like in autonomous system we are dealing with routers and networks। कोई भी autonomous system में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो एक राउटर होता है और दूसरा लिंक्स होते हैं, मतलब पाथ। सो ये
किसको डिस्क्राइब करता है? नोड को। तो एक नोड है सपोज, तो ये राउटर, इसको हम राउटर भी कह सकते हैं। और ये किससे कनेक्टेड है? ये पाथ है। तो किससे कनेक्टेड है ये लिंक से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पर ये कंसिडर करना पड़ेगा जब हम रीप यूज करते हैं। नोड भी यूज करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा as a router and links. The destination in a routing table is a network, which means the first column defines a network address. राउटिंग टेबल कैसा होगा रिप का? ये 3 एंट्रीज मस्ट है। पहला डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन नेटवर्क, इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस पहला। दूसरा है कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कितनी है। और तीसरा जो मेन फील्ड होता है राउटिंग टेबल में, रिप के राउटिंग टेबल में, वो होता है नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप कौन सा है? तो ये 3 चीजें यहाँ पे जरूरी है, आवश्यक है कि नेटवर्क एड्रेस, तो पहला फील्ड जो पहला कॉलम है ये तो नेटवर्क फील्ड करता है कि कौन सा, किससे हमें, किसका राउटिंग टेबल हमें अपडेट करना है, किसके साथ में इसको कनेक्ट करना है। सो डेस्टिनेशन नेटवर्क, या फिर हम कहेंगे नेटवर्क एड्रेस। तो ये नेटवर्क एड्रेस तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे कॉस्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद यूज करना पड़ेगा इस टेबल में। उसके बाद नेक्स्ट हॉप कौन सा है वो भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। Then metric used by a RIP is very simple. The distance is defined as the number of links that have to be used to reach the destination. Number of links. यहाँ पे ये जो मेट्रिक है, ये मेट्रिक कैसे डिफाइन होगा? ये नंबर ऑफ लिंक्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ऐसे नोड है ABCD, तो A टू D अगर मुझे पहुंचना है, A टू D मुझे सेंड करना है पैकेट, या फिर हम कहेंगे A को D से कनेक्ट करवाना है, तो इसको कितने हॉप्स लगेंगे? 1 हॉप, 2 हॉप, 3 हॉप, ये 3 हॉप पे। या फिर हम कहेंगे कि इसको हम एलिमिनेट करें, इस नोड को एलिमिनेट करें, और कितने नोड बचे हैं यहाँ पे? 1 2 3। ऑब्वियसली इट इज 3 हॉप्स, देयर आर 3 हॉप्स। विल सी दिस हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हॉप्स। सो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स डिसाइड होगा number of hops that have to use to reach the destination. For this reason the metric RIP is called as hop count. इसमें जो मेट्रिक होता है, रिप में जो मेट्रिक होता है, या फिर हम कहेंगे कॉस्ट होता है, उसे हम क्या नाम से डेसिग्नेट करते हैं? हॉप काउंट से। जैसे हॉप काउंट से हम यहाँ पे डेसिग्नेट करते हैं रिप में, ठीक है। इंफिनिटी इज डिफाइंड एज 16 तक ये काम करेगा, विच मीन्स दैट एनी route in a autonomous system using RIP cannot have more than 15 hops. हमने देखा कि 15 हॉप तक ये चलता है। कितना? 15 हॉप तक। तो ये 15 हॉप मतलब 16 मतलब क्या है यहाँ पे? इंफिनिटी। 16 तो वहां पे अवेलेबल हो गई ना। कितना अवेलेबल होगा ज्यादा से ज्यादा हॉप? 15, मैक्सिमम 15, ठीक है। तो मैक्सिमम 15 है, तो 16 को क्या डिफाइंड होगा यहाँ पे? 16 ये हम कहेंगे इंफिनिटी। 1 सेकेंड। ओके, ओके। सो 15 मैक्सिमम, और उसके आगे सारे इंफिनिटी रहेंगे। नेक्स्ट नोड
column defines the address of the router to which the packet is sent to reach its destination. जो पैकेट अभी मैंने कॉलम निकाला था वहां पे नेक्स्ट कॉलम क्या डिफाइन करता है, एड्रेस ऑफ द राउटर नेक्स्ट. एक्चुअली मैंने ये इस तरीके से निकाला था, वो एक एड्रेस यहाँ पर क्या है, सो दैट ये जो पहला जो है ये नेटवर्क एड्रेस है, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, सॉरी ये नेटवर्क एड्रेस है, इसके बाद कॉस्ट है और नेक्स्ट इट इज अ डेस्टिनेशन, दिस इज डेस्टिनेशन. तो ये तीन कॉलम यहाँ पे रहेंगे इस नेटवर्क, इस रिप रूटिंग टेबल में. टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन, वेरी सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है. एक AS1 है यहाँ पे, AS2, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4, लाइक दिस वन. सो इट इज अ सोर्स. ये क्या है यहाँ पे, ये सोर्स है. और यहाँ सोर्स से ये जो नेटवर्क है ये किसको कनेक्टेड है, R1 को कनेक्टेड, राउटर 1. नेटवर्क 2 किसको कनेक्ट है, राउटर 1 को भी है और राउटर 2 को भी है, नेटवर्क 3 और राउटर 2, राउटर 3 और ये. तो ये इसको कितने हॉप लगेंगे, नेटवर्क 1 को डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कितने नंबर ऑफ हॉप्स लगेंगे, ऑब्वियसली 3. इसको छोड़ दीजिए, 1, 2 और ये डेस्टिनेशन है यहाँ पे 1, 2, 3, या फिर हम कहेंगे दिस 1, 2 and this third is the third link, that is a 3 hops. ये पहला लिंक है, ये दूसरा लिंक है और ये तीसरा लिंक है. तो ये 3 हॉप यहाँ पे लगेंगे. राउटर 2 को कितने हॉप्स लगेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, so that router 2 can spread the data to network 2. 2 हॉप लगेंगे यहाँ पे, पहला लिंक और ये दूसरा लिंक, 2 हॉप लगेंगे यहाँ पे ऑब्वियसली. इसके बाद R3 directly connect to the N4, so there is only one hop, only one hop. ठीक है. अब यहाँ पे फायदा क्या है N4 को कनेक्ट करने का R3 को, क्योंकि इसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन नहीं रहेगा, डैश रहेगा. चलो देखते हैं राउटिंग टेबल कैसे निकालना है. यहाँ पे फॉरवर्डिंग टेबल फॉर R1, ये R1 का टेबल है. R1 का टेबल अगर है, हम यहाँ पे देखते हैं N1, N2, N3, N4 लिख लेना है, N1, N2, N3, N4, क्योंकि इट कंटेंट्स, दिस R1 कंटेंट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 एंड नेटवर्क 4. अब यहाँ पे पहला कॉलम जो है ये डेस्टिनेशन नेटवर्क का है, डेस्टिनेशन नेटवर्क. यहाँ पे कुछ अलग दिया है एक्चुअली, नेक्स्ट कॉलम डेस्टिनेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा. नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम में देखते हैं, नेटवर्क एड्रेस. तो N1 का कॉस्ट कितना लगता है यहाँ पे, N1 को रीच करने के लिए, R1 को रीच करने के लिए कितने कॉस्ट लगता है, ऑब्वियसली इट इज 1. नेक्स्ट राउटर कौन सा है इसका, कोई नहीं है, इसलिए डैश. N2 को रीच करना है R1 से, कितना है कॉस्ट, 1 है. वाया, it is not connected via any net router, so it is directly connected to network N1 and N2. This R1 directly connected to network 1 and network 2, which means that there are no next hop entries for these two networks. There is no next hop entries. कोई यहाँ पे hop entry नहीं होती है. तो ये भी डैश है, ये भी डैश है. ठीक है. अब यहाँ पर N3 का देखो, R1 से N3 को रीच करना है, कितने हॉप लगेंगे, 1 एंड दिस वाज सेकंड. तो यहाँ पे 2 हॉप लगेंगे, 2 हॉप है. नेक्स्ट राउटर कौन सा है, R1 का नेक्स्ट राउटर कौन सा है,
this one is the next router, that is R2 is the next router. ओके, N4 को कनेक्ट करना है, N4 को इंफॉर्मेशन सेंड करना है या फिर कुछ जो भी है उसका टास्क, R1 से N4 कितने हॉप लगेंगे? 3, 1 2 एंड दिस इज थर्ड, सो हियर 3 हॉप्स. नेक्स्ट राउटर कौन सा है इसका? वाया किससे जा रहा है N4 को? यस ऑब्वियसली इट इज R2. तो ये यहां पर R1 का टेबल. अब R2 का टेबल अगर देखें हम, R2 का टेबल अगर देखें तो R2 का टेबल ये किसको कनेक्ट करना चाहता है? N1 को, R1 टू N1, R2 टू N1. कितने हॉप लगेंगे? 1 एंड 2 हॉप लगेंगे यहां पे वाया R1. सो नेक्स्ट राउटर क्या है? N1 को जाने के लिए R1 है, तो ये R1 है यहां पे. फिर N2, दिस वन, एक ही हॉप है और इसके आगे तो है नहीं ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. as this is directly connected to N2 and N3, so there is no next router with cost 1. जहां पर भी 1 आएगा वहां पे नेक्स्ट राउटर ये क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा या फिर डैश रहेगा. ओके, N4, R2 टू N4, यहां पर एक हॉप, दूसरा हॉप, तो 2 जंप लगेंगे यहां पे. और किसके वाया जा रहा है ये? N3 सॉरी R3 के थ्रू जा रहा है. तो नेक्स्ट राउटर क्या है यहाँ पे? R3 है. सो दिस इज अबाउट सेकंड टेबल R2 एंड देन R3. R3 का क्या है भी यहाँ पे? N1, R3 टू N1. अब N1 को जाने के लिए कितने लिंक्स पार करने पड़ते हैं? 1 2 and 3. So 3 hops required. How many hops required? 3 hop required. तो इसके जस्ट नेक्स्ट कौन सा है? इसके थ्रू जा रहा है? R2 के थ्रू जा रहा है. कैसे जा रहा है? R2 के थ्रू जा रहा है. तो यहाँ पे नेक्स्ट राउटर क्या है? R3 का R2 है. R2 फिर R1 को भेजेगा, वो हमें उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो नेक्स्ट नेटवर्क इज N2, R3 टू N2. कितने हॉप लगेंगे? 2 हॉप लगेंगे. नेक्स्ट कौन सा इसका राउटर? 2 है. ओके, R3 टू N3 एंड N4 इमीडिएट नेटवर्क है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू R3. सो नो नेक्स्ट राउटर एंड इट इज 1. कॉस्ट कितना है इसका? हॉप कितना है? 1 है. सो दिस इज अबाउट R3 routing table. I think you better understand this concept now. राउटिंग टेबल का, और ये रिप में इस तरीके से टेबल को अपडेट किया जाता है. चलो एक एग्जांपल के लिए आपको एक दिया है मैंने विथ एड्रेस. तो इसका राउटिंग टेबल क्या बनेगा? 7 नेटवर्क्स है, 1 2 3 4 5 6 7 networks are there and 4 routers are there, 1 2 3 4. so R1, चलो R1 का राउटिंग टेबल निकाले. R1 का राउटिंग टेबल बताएगा कोई? डेस्टिनेशन क्या है? पहले हमें एक टेबल बना लेना है. यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं. टेबल बना लिया हमने. यहाँ पे 3 कॉलम हमें देना है. 3 कॉलम किसके लिए?
अब ये तो बहुत बड़ा हो गया एक्चुअली, टेबल कॉलम बहुत बड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं, एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूं पहले। छोटा कर लेता हूं एक। अब यहां पर मुझे R1 का टेबल बनाना है, फॉरवर्डिंग टेबल। As anybody can unmute themselves and can tell me, यहां पर क्या लिखूं मैं? डेस्टिनेशन, ऑब्वियसली इट इज डेस्टिनेशन। यहाँ पे कॉस्ट है, ठीक है ना, कॉस्ट है। और यहां पर क्या है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट हॉप, या फिर नेक्स्ट राउटर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेटवर्क, वट एवर, या फिर हम कहेंगे वाया व्हाट, ये यहां पे लिखेंगे। चलो पहला क्या है इसमें? डेस्टिनेशन ये वाला है 130.10.0.0, दिस इज अ डेस्टिनेशन, ठीक है ना, ये डेस्टिनेशन है उसका। कॉस्ट कितनी है इसकी? ऑब्वियसली इट इज 1। और नेक्स्ट क्या है इसका? नथिंग, नेक्स्ट इज नथिंग बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड। चलो कोई बताएगा दूसरा, दूसरी एंट्री बताएगा कोई? 130.11.00. यस करेक्ट, वेरी करेक्ट, 130.11.0.0। क्या है इसका कॉस्ट? 1। 1. यस करेक्ट, 1। और नेक्स्ट क्या है इसका? Blank. Blank रहना. नो, Directly connected है. it is directly connected. Okay, next is you can take this one, this network, you can take this network, you can take this network, and you can take this network, and you can take this network and make the entries here. Okay, so 195.2.4.0, करेक्ट। ये अगर हमने लिया, इस नेटवर्क को हमें करना है ना, कितने हॉप लगेंगे इसको? 1 and 2, कितने हॉप लगेंगे? 2। यहां से यहां तक आने के लिए एक हॉप है, और यहां से राउटर 2 तक जाने के लिए सेकंड हॉप है। फिर राउटर इसको देगा, ये हमें लेना, तकलीफ नहीं करनी यहाँ पे, ये तो ऑटोमेटिक वही करेगा। फिर नेक्स्ट राउटर कौन सा है इसका? R2। हम किसको देंगे? पैकेट किसको देंगे? R2 को देंगे, ठीक है, R2 को देंगे। या फिर हम कहेंगे नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस क्या है यहाँ पे? फिर हम एड्रेस में अगर बात करें तो नेक्स्ट एड्रेस क्या है यहाँ पे? 130.10.0.1, ये वाला 130.10.0.1, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट दिस वन, यहां तो अगर आपने R2 लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस अगर लिखते हैं तो ये लिखना पड़ेगा, या तो फिर R2 लिख दो। R2 लिखना लिखते हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। यहां पर इसको N1 लिखो, N2 लिखो, N3 लिखो, N4, N5, N6, N7, 7 नेटवर्क्स हैं, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे हमें एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे N4 लिखते हैं, यहाँ पे N5 लिखते हैं, यहाँ पे N1 लिखते हैं, उसके बाद N2 लिखते हैं, N3 लिखते हैं, एंड सो एंड सो एंड कंटिन्यू रहेगा ऐसा, ठीक है ना। तो ये
मुझे लगता है आपको समझ में आया अभी कि ये कैसे इसको हमने एक एग्जांपल के लिए लिया था ये सिर्फ। तो ये थोड़ा-सा सिंपल है, ये थोड़ा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे आपने एड्रेस भी दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज़ मैं इसको खत्म कर लूँ फटाफट। इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट कि इतना आपको ज़्यादा इसको इसका लक्ष्य यहाँ पे रहेगा, ऐसा कोई है ही नहीं। हमें ये हमारा लक्ष्य है ही नहीं एक्चुअली, फॉर्मेट वगैरह ये थ्योरेटिकल है इसे। इसमें ये कमांड क्या होता है, इसमें ये रिप मैसेज है, इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स 2 होते हैं। मेरे पास 5 या 6 मिनट बाकी है, मैं इसमें खत्म करता हूँ इसमें। आपके सामने ये स्क्रीन दिख रहा है अभी। You can see this one. You can draw this format if it ask, otherwise not necessary. लेकिन अगर रिप का मैसेज अगर देखें हम, इसका फॉर्मेट, इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस दोनों होते हैं। इसमें से एक मैसेज है, ये रिस्पांस मैसेज है। तो इसमें कमांड एक फील्ड है जो कि 8 बिट फील्ड होती है। 8 बिट फील्ड है ये, दैट स्पेसिफाइज द 2 मैसेजेस, दैट इज अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। रिक्वेस्ट होता है 1 एंड रिस्पांस होता है 2। ये कौन सा वर्जन का है? So version 1 and version 2, though 2 versions are there of RIP message or RIP packet 1 or 2. तो ये डिफाइन करता है 8 bit field कि whether it is 1 or 2. Then it is reserved, it is not used, it is used for future use. Then reserved for future use. Then next is the family, it is a 16 bit field, depend the family of the protocol used, that is whether it is a TCP/IP और एनी अदर। अगर TCP/IP करते हैं तो ये यहाँ पे 2 आएगा। फिर है नेटवर्क एड्रेस, तो ये तो 14 बाइट का नेटवर्क एड्रेस है। डिफाइन द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन destination network. So it allocates 14 byte for this field to applicable for any protocol. So 4 bytes are there. IP uses currently 4 bytes. The rest of the address is filled with zeros. बाकी के zeros हैं। और distance क्या है? एक next field है, that is a 32 bit field, defines the hop count from the advertising router to the destination. तो ये सिंपल सा मैसेज फॉर्मेट है रिप का। इसमें 2 टाइप के मैसेजेस होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट एंड दूसरा होता है रिस्पांस। ये पहला वाला जो है कमांड, ये कमांड ये स्पेसिफाई करता है whether it is a request or it is response. अगर रिक्वेस्ट है ये, तो रिक्वेस्ट का ये फॉर्मेट है, ये कमांड 1 वर्जन रिजर्व फैमिली ऑल जीरोस नेटवर्क एड्रेस एंड ऑल जीरोस। फॉर रिक्वेस्ट फॉर ऑल, उसके लिए फैमिली एंड नेटवर्क एड्रेस होगा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ, सॉरी यहाँ पे ऑल जीरोस होगा इंस्टेड ऑफ नेटवर्क एड्रेस। सो रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंड बाय द राउटर दैट जस्ट come up or by router that has some timeout entries. Request can ask about specific entries or all entries. ये specific entries के लिए और ये all entries के लिए ये एक request message यहाँ पे forward होता है। फिर होता है response. Response either may be solicited or unsolicited. Solicited का हम मतलब अगर निकालें, solicited response means as per the request, as per the request, उसको हिंदी में कहते हैं अनुरोध के ऊपर, अनुरोध। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई अनुरोध करता है, तभी ये रिस्पांस मिलेगा। इट कैन बी आइदर solicited और अनसॉलिसिटेड, मतलब विदाउट रिक्वेस्ट भी हो सकता है, तो ये अनसॉलिसिटेड है। सॉलिसिटेड रिस्पांस इज सेंड ओनली इन आंसर टू रिक्वेस्ट, यहाँ पे लिखा ही है रिक्वेस्ट के ऊपर। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड इन द करस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट। तो अनसॉलिसिटेड रिस्पांस क्या होता है? इट इज पीरियडिकली एवरी 30 सेकंड। हम तो रिक्वेस्ट नहीं करते, फिर भी 30 सेकंड के बाद ये यहाँ पे राउटिंग टेबल, फॉरवर्डेड राउटर टेबल
अपडेट करने के लिए ये आफ्टर एवरी 30 seconds दैट रिस्पॉन्स विल ऑटोमेटिकली गिवन टू चेंज दैट पर्टिकुलर राउटिंग टेबल। तो हो सकता है कि आपके नेटवर्क में कुछ चेंजेस हो गए, तो उसको कलेक्टिवली ऐड करना, तो हम तो नहीं करते, हम तो सेंड करते रहे मैसेजेस, और राउटर हम हम पाथ चूज करते रहते हैं। तो ये काम है रिस्पॉन्स का, अनसॉलिसिटेड रिस्पॉन्स का, कि आफ्टर एवरी 30 seconds दैट विल accept. So this is the actually the format for the response, and this is the format for request. And last point is timers. So this timer uses 3 timers to support its operation. RIP का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 3 टाइमर्स होते हैं यहाँ पे। RIP यूज करता है पीरियोडिक टाइमर कंट्रोल, उसके बाद एक्सपायरेशन टाइमर और गार्बेज कलेक्शन। पीरियोडिक टाइमर कंट्रोल क्या करता है? मैसेजेस सेंड करता है पीरियडिकली। एक्सपायरेशन टाइमर क्या करता है? सो इट गवर्न्स द वैलिडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पाथ और इट इज अ रूट। एंड द गार्बेज कलेक्शन टाइमर एडवर्टाइज द फेल्यूर ऑफ राउटर। अगर वहां पे डेस्टिनेशन में रूट मिला नहीं पैकेट, या फिर और कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो गार्बेज कलेक्शन वहां पे आफ्टर एवरी 130 सेकंड, 120 सेकंड, 180 सेकंड, 25 to 30 seconds ये पीरियडिक टाइमर्स चलता रहता है। सो इट कंप्लीट्स योर RIP. Next time we'll see OSPF, and you can now go for attendance.